الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا معين له ولا مشير له ولا مزارع له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. محترم بھائی اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے، ایک سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام، اے نبی اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہے اسلام۔ ایک دوسرے موقع پر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ای الاسلام افضل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ کون سا مسلمان بہتر ہے، اعلیٰ ہے؟ کون سا مسلمان افضل ہے؟ کون سا اسلام افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو جائے وہ صحیح معنی میں مسلمان ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، اور یہ اعلیٰ ترین مسلمان ہے، بہترین اور افضل ترین مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور بہتر مسلمان بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مسلمان سے محفوظ رہے، مسلمان سے سلامت رہے۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد کہ مجھ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی انسان کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ میرے قول و فعل سے، نہ میری حرکت و سکنات سے، نہ میری بول چال سے، نہ میری زبان سے، نہ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔
اور اس کے لیے انسان کو، ایک مسلمان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ایک مسلمان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بغیر کوشش کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کوئی چیز انسان کے اندر آتی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کوشش کرے گا، مجاہدہ کرے گا کہ کیسے میں اس بات پر عمل کرنے والا بنوں اور کیسے میں ایک ایسا انسان بن جاؤں کہ مجھ سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ میری زبان سے نہ میرے ہاتھ سے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اس بات کی کوشش کرے کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو، نہ اس کا دل ہم سے چھلنی ہو، نہ اس کا بدن کسی طرح سے زخم آلودہ ہو اور چھلنی ہو۔ یہ مسلمان کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ ہے مسلمان سچا، یہ ہے مسلمان اعلیٰ مسلمان اور بہتر مسلمان۔ ہم روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری نمازیں اور دوسری سنتیں اور نفلیں پڑھتے ہیں۔ تقریباً 34 سلام ہوتی ہے، 34 سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم داہنی طرف والوں کو حی علی الفلاح کی طرف والوں کو حی علی الصلاح کی طرف والوں کو ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، اور دنیا کے جنوب میں جتنے انسان ہیں اور شمال میں جتنے انسان ہیں، مشرق میں جتنے انسان ہیں، مغرب میں جتنے انسان ہیں، ہر انسان کو، پوری دنیا کے انسانوں کو ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ مجھ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ تکلیف تو نہیں ہوگی، بلکہ میں تو تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں امن و امان میں رکھے، اللہ تمہیں سلامتی میں رکھے، اللہ تم پر رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں برکت نصیب فرمائے۔ یہ ہے مسلمان گارنٹی دیتا ہے ہر نماز کے بعد۔ ابھی جمعہ کی نماز ہوگی، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہوگی، اور دعائے معصودہ پڑھنے کے بعد مسلمان سلام کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جتنے بھی جنوب کے لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم اس کو گارنٹی دیں گے کہ ہم تمہیں کبھی نہیں ستائیں گے، مجھ سے تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی، مجھ سے کبھی تمہیں دکھ نہیں پہنچے گا، نہ تمہارے دل کو مجھ سے زخم پہنچے گا، نہ تمہارے بدن کو زخم پہنچے گا۔ یہ مسلمان۔ اور کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو سہ لینا چاہیے، کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو معاف کر دینا چاہیے، دل پر پتھر رکھ دینا چاہیے، پی جانا چاہیے، تب جا کے یہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بنے گا، امن و امان کا گہوارہ بنے گا۔ ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ جیسا دے گا ایسا ہمیں کوئی نہیں دے گا، اللہ جیسا بدلہ عطا فرمائے گا ایسا کوئی ہمیں عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ ہمیں دینے والا ہے، اللہ پر چھوڑ دے، اللہ جیسا بدلہ لے گا ایسا بدلہ نہیں کوئی دے سکے گا، اور اللہ جیسا بدلہ ہمیں دے گا ایسا کوئی ہمیں نہیں دے سکے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ گو کرنا سیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ایک یہودی آیا، اور کسی بات پر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی آدمی گالی وغیرہ دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے تو اس کا جواب فرشتے دیتے ہیں، اگر جس کو گالی دی جاتی وہ خاموش رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق خاموش بیٹھے ہیں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گالیاں دینا بند ہو گیا، وہ یہودی چپ ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بولو، کیوں خاموش ہو گئے؟ بولو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے ہو لیے، ان کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ سے آپ ناراض ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر جب تک تم خاموش تھے تو فرشتے تمہارے جواب دے رہے تھے، فرشتے اس پر لعنت کر رہے تھے، لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے تو میں بھی وہاں سے چل دیا۔ تو جو آدمی خاموش رہتا ہے اس کا جواب اللہ دیتا ہے، اور اللہ جیسا جواب دے گا ایسا کوئی نہیں دے سکے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چلے جا رہے ہیں، ایک نوجوان ان کو گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مارا پیٹا نہیں، جواب نہیں دیا، اس کے بولوں کا جواب بولوں سے نہیں دیا، بلکہ کہنے لگے کہ اے بیٹے، اے نوجوان، آگے ایک بہت خطرناک گھاٹی ہے،
अगर इस घाटी में मैं गिर गया, मैं घाटी में गिर गया तो जो तू कह रहा है उससे भी मैं बुरा हूं, और अगर इस घाटी से मैं पार लग गया, इस घाटी से मैं पार लग गया तो फिर तेरा बुरा भला कहना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे बुरा भला कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है। तो भाई हम तो मरने वाले हैं, मरने वाले किस बात पर फख्र करें, मरने वाले किस चीज की तरफ लपके, मरने वाले किस चीज का फख्र करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने से पहले मर जाओ। क्या फरमाया? मरने से पहले मरो, यानी अपने नफ्स को मार दो, अपने नफ्स को मार दो, अपने आप को मार दो, नफ्स को मार दो। नफ्स मर गया तो इंसान तो है, लेकिन वो कैसी जिंदगी गुजारेगा? नेक बख्ती की जिंदगी गुजारेगा। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाला जो उसको मालूम होता है कि मुझे आगे जाना है तो कितनी इबादतों में मशगूल हो जाता है, वो अल्लाह ताला से तौबा तिल्ला करता है। तो आदमी को मरना है, मरने वाले को मरने की तैयारी करनी चाहिए, मरने की तैयारी करनी चाहिए। अहनफ इब्न कैस, एक आदमी ने इनसे कहा कि तुम मुझे एक गाली दोगे, मैं तुम्हें 10 गाली दूंगा। अहनफ इब्न कैस ने कहा घबराओ नहीं भाई, तुम मुझे 100 गालियां दोगे तो मैं तुम्हें एक भी गाली नहीं दूंगा। क्या फरमाया? तू मुझे 100 गालियां देगा, मैं तुझे एक भी नहीं दूंगा। एक मरतबा वो चले जा रहे थे, एक दूसरा आदमी उनको गालियां देने लगा, बुरा भला कहने लगा। वो गालियां दे रहे हैं, हम हजरत चल रहे हैं, अहनफ इब्न कैस चल रहे, अपना कीला पासा गया, अपना कबीला पासा गया, तो कहने लगे कि भाई मैं यहां खड़ा रहता हूं, जितनी गालियां देना हो गालियां दे दे, क्योंकि यहां से तू आगे बढ़ेगा और मेरे कबीले वालों ने सुन लिया कि तू गालियां देता है तो फिर तेरी खैर नहीं, इसलिए मैं यहां खड़ा रहता हूं, जितनी गालियां दे दे, तेरी गालियां खत्म होगी तो मैं यहां से जाऊंगा। ये है। तो जर बड़ा होना चाहिए, माफी तलाफी होनी चाहिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा अय्युल ईमान, पहले पूछा अय्युल इस्लाम, इस्लाम क्या है? अब एक सहाबी पूछ रहे अय्युल ईमान, ईमान क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, रोजे कयामत पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, मरने के बाद खड़े होने पर ईमान लाना, यह है ईमान। फिर एक सहाबी ने पूछा अय्युल इस्लाम अय्युल ईमान अफजल, कौन सा ईमान अफजल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सा ईमान अफजल है? आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सिल मन कता, जो तुझसे रिश्ता तोड़े उसके साथ तू जोड़, सिल मन कता, ओ तो मन हरामत, जो तुझे न दे उसको तू दे, ओ तो मन हरामत, जो तुझे न दे उसको तो दे, ओ मन ज़लमत, जो तुझ पर जुल्म करे, जो तेरे साथ नाफरमानी करे उसके साथ तू अच्छा सलूक कर, उसको अता कर, उसको माफ कर। क्या फरमाया? जो तुझ पर जुल्म करे उसको माफ कर दे। अल्लाह आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारा ईमान मजबूत होगा इससे, लेकिन तुम्हारा ईमान निखरेगा किससे? इन चीजों से कि जो न जोड़े उससे जोड़ो, जो तोड़े उसके साथ जोड़ रखो, जो न दे उसको दो, और जो आदमी तुम्हारे ऊपर जुल्म करे, नाइंसाफी का मामला करे, उसको माफ कर दो। आका सरकार ने फरमाया तुम्हारा ईमान और बेहतरीन मोमिन तुम कहलाओगे। और अल्लाह ताला का एहसान देखे हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान कहा, मुसलमान अपने नाम के साथ जोड़ा। सलाम क्या है? अल्लाह का नाम है, अपने नाम से अल्लाह ताला ने अपने मुसलमानों को जोड़ा और अपना नाम मुसलमानों को दिया। मुसलमानों को मोमिन कहते हैं, मोमिन अल्लाह का नाम है। अल्लाह ताला का एहसान देखिए कि हम इस उम्मत को, पहली उम्मतों को ये लक़ब नहीं दिए, इस उम्मत को अल्लाह ताला ने मोमिन कहकर पुकारा और मोमिन का अपने नाम के साथ जोड़ा, अपना नाम दिया। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपना नाम दिया कि तुम मोमिन हो। ये अल्लाह ताला का बहुत एहसान है और बहुत बड़ा करम है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज का मुसलमान क्या है? अदले का बदला। मुसलमानों के अंदर अखलाक खत्म होते जा रहे हैं।
चंद% लोग होंगे जिसके अंदर अखलाक होंगे। आज क्या है? अदले का बदला। अखलाक नहीं है कि चाय पिलाई किसी ने तो हम भी चाय पिला देंगे, भाई इसने चाय पिला दी, चाय पिला दी। खाना खिलाया था उसको हम खाना खिला देंगे, उसने मेरी इज्जत की थी हम उसको इज्जत दे देंगे। वो हमारे शादी में बियाह में आया था हम उसकी शादी बियाह में जाएंगे। ये तो अदले का बदला है, ये अखलाक नहीं है, ये अखलाक नहीं है, ये तो अदले का बदला है। जो उसने तुम्हारे साथ सुलूक किया था उस सुलूक का बदला तुम दे रहे हो, ये अखलाक नहीं है। बाद लोग इसको अखलाक समझते हैं, ये तो अदले का बदला है। जो तुम्हारे साथ हुआ था वही तुम उनके साथ कर रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखलाक किसको कहते हैं? सिल मन कता, जो तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़े उनके साथ जोड़ो। आज हमारे यहाँ क्या है? उसने शादी में मुझे दावत नहीं दी थी, मैं उनकी शादी में नहीं जाऊंगा। मेरा फलां रिश्तेदार है, वो निकाह में नहीं आए थे, हम उनके निकाह में नहीं जाएंगे। ये हमारे हाल है। जब ऐसा हाल होगा उम्मत का तो बताओ कहां से अल्लाह की नुसरत आएगी, कहां से अल्लाह की मदद आएगी? आज जितनी भी उलमाए किराम कहते हैं, बुजुर्गान दीन, सूफियाए किराम कहते हैं, जितनी भी ये तकलीफ है ये हमारे किए हुए करतूतों की वजह से आ रही है। आज हमने इत्तेहाद और इत्तिफाक को छोड़ दिया, आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी छोड़ दी, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक छोड़ दिए। आज माँ बापों को तोहफों में किया जाता है, आज माँ बापों को जलील किया जाता है, आज हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, आज हमारे रिश्तेदार वडीलों को बड़ी नहीं जानती, आजाद ख्याली है, आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नौजवानों को देखो कैसी कैसी हालत से गुजर रहे हैं, कैसे कैसे इनके हालात हैं, कैसे कैसे इनके अमाल है। अलमान और हफीज आदमी सर पकड़ कर बैठ जाता है, माँ बाप परेशान है, उलमाए किराम के पास जा जाकर शिकायत करते हमारी औलादों को कुछ कहो, हमारी औलादों को कुछ कहो। हम इनको ये कहते हैं जब ये छोटा पौधा था तभी उनको संभालना चाहिए था। आज हमारे नौजवानों के हालात बड़े दिगरगू होते जा रहे हैं, बड़े हालात हम पूरे होते जा रहे हैं, नौजवानों के आमाल बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं। आज उम्मत को उनकी तरफ रहनुमाई करने और उनकी तरफ तवज्जो देने की बहुत जरूरत है, मुतवज्जह होने की बहुत जरूरत है, और खास करके उनके घर के लोगों को मुतवज्जह करने की बहुत जरूरत है। देखिए दूर दराज पर कहां हमारे मुसलमान भाई, हमारे नौजवान जाकर बैठे होते हैं और कैसी कैसी अय्याशी में पड़े होते हैं, न मानो कैसे कैसे बाजार में अपने औकात को खराब कर रहे होते हैं, अपने औकात को जाहिर कर रहे होते हैं। देर देर तक मोबाइल लेकर बैठे होते हैं और देर देर रात तक जागते रहते हैं और फिर सुबह सोए रहते हैं। उठने का टाइम इनका होता है 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक सोए रहते हैं। ये हालात हमारे माशरे के होते जा रहे हैं। देखिए आजकल हमारी मस्जिदें, पहले कितने लोग हमारी मस्जिदों में फजर की नमाज पढ़ते थे, अब देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नौजवान होते हैं। नौजवानों को देखो, हालात का दारोमदार नौजवानों को होता है। नौजवानों को देखो, 15 से लेकर 33 साल के तक के बच्चों को देखो, नौजवानों को देखो, इन जवानों को देखो। बहुत कम नौजवान हमें मिलेंगे जो मस्जिदों में हमें नमाज पढ़ते मिलेंगे, तहज्जुद पढ़ते मिलेंगे। ये हालात हमारे माशरे के, इसलिए बचपन ही से इन बच्चों की अच्छी तरबियत करो। उलमा ने लिखा है कि 3 चीजें खुद अपने ऊपर लाजिम कर लो और बच्चों को भी उनके साथ कोई उनके साथ सुलह नहीं, किसी किस्म की लेट गोली, किसी किस्म की बांध छोड़ नहीं, किसी किस्म का 19-20 नहीं। 3 चीजें कौन सी है? बच्चों को सिखाए बेटा कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ न बोलना। हालांकि सरकार के पास एक शख्स आया और कहने लगा मैं मुसलमान हो गया, आप मुझे कोई नसीहत कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ मत बोलना। ये आदमी खुश हो गया कि चलो ये इस चीज पर अमल कर लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज छोड़िए, छोड़ दे, सब कुछ होता रहेगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अब वो घर गया और उसको ख्याल आया अजान नहीं कर रहे, नमाज पढ़ने जाना है। अगर नमाज नहीं पढ़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, तो मुझे तो सच बोलना है वही नहीं पढ़ी। इस तरह उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से जुमले से मुझे बांध कर रख दिया।
तो बच्चों को कहें कि बेटा कभी झूठ न बोलो, इसमें कोई भी बांध छोड़ नहीं, कोई भी रहम नहीं, कोई भी दया नहीं, बस झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। ये बच्चों को सिखाए। दूसरी बात कि कभी बच्चों को कहे कभी बेटा नमाज न छोड़ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नमाज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बीमार है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के यहां अगर तू घर से नहीं निकल सकता यहां नमाज पढ़ो, और मस्जिद में जा सकता है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। नींद आई है कोई बात नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नमाज तो तुझे पढ़नी पड़ेगी। लेसन करना है नहीं बेटा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तुझे नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चों पर दबाव डाले, नमाज किसी हाल में माफ नहीं, किसी भी हाल में माफ नहीं, चाहे वो रोजा हो, लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो, पांव से अपाहज हो, कोई नमाज माफ नहीं। बहरा हो कोई नमाज माफ नहीं, डूबता हो कोई नमाज माफ नहीं, आंखें नहीं कोई नमाज माफ नहीं। पानी नहीं है अल्लाह ताला ने फरमाया कि तयम्मुम कर ले, नमाज माफ नहीं। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, कहां बैठ कर नमाज पढ़ लो, नमाज माफ नहीं। बैठ कर नहीं पढ़ सकते, कहां लेटे लेटे पढ़ लो, नमाज माफ नहीं। इशारे से पढ़ो, नमाज माफ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, भाई मेरे सहाबों बताओ, किसी के घर के बाहर से नहर जा रही है और रोजाना उसमें 5 वक्त गुस्ल करता है, क्या उसके बदन के ऊपर कोई गैर कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा ने अर्ज किया, नबी कोई गैर कुचैल बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसी तरह जो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह ताला उसके दिल के मैल को साफ कर देता है, उसको गुनाहों से अल्लाह ताला बरी फरमा देता है। नमाज की बरकत है। ज़ोहर में आ जाओ, अल्लाह कहता है फजर से लेकर ज़ोहर के गुनाह माफ। असर में आ जाओ, अल्लाह कहता है कि तुम्हारे ज़ोहर से लेकर असर तक के सारे गुनाह माफ। अल्लाह ताला 2 नमाजों के दरमियान के गुनाह माफ फरमा देता है। इतना मेहरबान है, इतना काम करने वाला, इतना रहम करने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को हमेशा नमाज का पाबंद बनाए। नमाज के पाबंद बनने से बहुत सारी चीजें हमें भी फायदा होता है। बच्चा नमाज पढ़ता है, हमें फायदा होता है। बच्चा नमाज पढ़ने वाला बनेगा तो उसको टाइम का लिहाज होगा, टाइम की तमीज पैदा होगी, हर चीज वो टाइम पर करने वाला बनेगा। उसके अंदर आदत बनेगी कि मुझे हर काम टाइम पर करना है। ये प्रैक्टिस कराती है नमाज, ये प्रैक्टिस कराती है नमाज। और मैंने कभी कहा कि सलाम फेरते हैं तो हम लोगों को गारंटी देते हैं क्या आप हमसे हमेशा के लिए सलामत रहोगे, आज हमेशा के लिए आप अमन में होगे। नमाज बहुत सारी प्रैक्टिस कराती है। उसके चेहरे के ऊपर सुलहा का रूप आएगा, उसके अंदर नरमी पैदा होगी, उसके अंदर अच्छाइयां पैदा होगी। वो दूसरे कामों से और बुरी चीजों से बचने वाला बनेगा, फुजूल कामों से बचने वाला बनेगा, मस्जिद की तरफ उसका ध्यान होगा, दावत तबलीग में जुड़ने वाला बनेगा। ये सारी चीजें फायदा होगी। तो बच्चों को कहे कि हमेशा नमाज को पढ़ते रहे, नमाज कभी न छोड़े। और बच्चों चाहे कितना भी कैसी भी हालत हो, बच्चों कहे बेटा नमाज तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, कोई भी कुछ भी हो जाए। इसके लिए हम खुद अपने आप को नमाजी बनाए, खुद अपने आप को नमाजी बनाए। नमाज में बड़े एक बात मुझे याद है, नमाज के कितने फायदे हो सकते हैं जरा सोचें। अजान जहां होती है वहीं से दुआ कबूल होना शुरू होती है। हदीस पाक में आता है जब मुअज्जिन अजान पढ़ता है कोई दुआ करके अल्लाह कबूल कर लेता है। दो नमाजों के दरमियान यानी अजान के बाद से लेकर जब तक तकबीर न कही जाए दुआ की जाती है, अल्लाह कबूल करता है। जब सफ में खड़े हो जाए दुआ की जाती है, अल्लाह कबूल करता है। जब सलाम फेर दे, सलाम के बाद जो दुआ की जाती है कबूल होती है। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात। 5 जगह तो यही हो गई, 5 जगह तो यही हो गई। तो नमाज हम लोगों को कहते रहते हैं दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना। अल्लाह कहता है हय्या अलस्सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। एक आदमी से मैंने सुना कि ये जो लफ्ज है हय्या, हय्या अरबी में कहते हैं ताल, आ जाओ। अरबी में कहते हैं हय्या, इसको भी कहते हैं हय्या, आ जाओ। लेकिन दोनों में फर्क है। ताल का माना चलो, ताल का माना चलो बेटे चलो,
ताल का माना चलो बेटे चलो आ जाओ, और हैया का माना हैया अलस्सलाह, नमाज की तरफ आई जाओ। वो कहता है कि एक अरबी को मैंने देखा कि अपने बच्चे को कह रहा ताल, या इब्नी ताल बेटे आ जाओ, या इब्नी ताल आ जाओ। जब वो नहीं आया तो गुस्से हो गए, हैया या इब्नी, हैया या इब्नी, तो आई जा। यानी मतलब एक अल्लाह कह रहा है क्या मेरे बंदो हैया अलस्सलाह, नमाज की तरफ तुम आई जाओ, नमाज की तरफ तुम्हें आए बगैर कोई छुटकारा नहीं है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये तर्जुमा होता है, ये तर्जुमा होता है आ जाओ नमाज की तरफ आ जाओ, ये नहीं आ ही जाओ, आना ही पड़ेगा। अलग एक बात मुझे याद आ गई, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि नमाज में कितने फायदे। अभी मैंने एक किताब में पढ़ा कि जब आदमी वुजू करता है, वुजू के बाद जो बचा हुआ पानी पीता है, अल्लाह ताला 70 बीमारियों से उसको छुटकारा दे। वुजू के बाद जो पानी, अभी तो लोटे का जमाना गया, अब तो नल होते हैं, नल में कोई वुजू करे, नल में कोई वुजू करे या खुद में वुजू करे, थोड़ा पानी ले ले, या जैसे ही हमारा वुजू हुआ थोड़ा सा पानी ले ले और खड़े होकर पी ले, खड़े होकर नहीं पी सकते, बैठे बैठे पी ले। 70 बीमारियों का अल्लाह ताला 70 बीमारियों से उसको निजात देते हैं। कितनी बीमारियों से? 70 बीमारियों से। और उसमें ये भी लिखा है कि सबसे छोटी बीमारी दमा, सांस की बीमारी, अल्लाह उससे निजात देगा। सबसे छोटी बीमारी, तो बड़ी बड़ी बीमारी कितनी होगी जरा सोचें। अगर अल्लाह मशानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने बहुत तजुर्बे किए हैं, हमने बहुत तजुर्बे किए हैं, हमने बहुत सारे लोगों को यह इलाज बताया, यह बल बताया, बड़ी बड़ी बीमारियों से हमने छुटकारा पाते देखा है, बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पाते देखा है। इसलिए इन चीजों पर भी अमल होना चाहिए। हमारा कोई ध्यान नहीं होता, कोई ध्यान नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। बस आए, अजान हुई, वुजू किया और नमाज पढ़ी और चल दिए। कितने तो लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि अभी नमाज का इंतजार करने में यहाँ बैठेंगे, उधर बैठेंगे, बातें कर रहे होंगे। हालांकि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अजान से लेकर इकामत के दरमियान दुआ करो, अल्लाह से मांगा करो। सहाबा ने पूछा नबी में क्या मांगे, क्या मांगे? सहाबा बहुत ही ज्यादा इबादत की तरफ मुतवज्जह होने वाले थे। दुआ मांगे, ये अक्सर सुनकर खामोश हो गए। अल्लाह के नबी से फौरन पूछा, अल्लाह के नबी क्या मांगे? कहा आफियत मांगे। क्या कहा? आफियत मांगे। तो हमें आफियत मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि दुआ मांगो, दुआ करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, जिक्र अस्कार करना चाहिए। हमारी 3 तस्बीह पूरी कीजिए। हमारे बुजुर्गान दीन ने दावत और तबलीग के साथ ही हमें हमारे मस्जिद वाले साथी बार बार बताते हैं 3 तस्बीहात है। ये 3 तस्बीहात तमाम जिक्र अस्कार का खुलासा है, तमाम जिक्र अस्कार का खुलासा है। इसको पढ़िए, इसको पूरा कीजिए, तो इंशाअल्लाह देखिए हमारी जिंदगियों के अंदर कैसे अल्लाह ताला इनकलाब पैदा करता है, कैसे अमन और अमान आता है, कैसे हमारी जिंदगियों में खुशहाली आती है, खुशगवारी आती है। हम कुछ करने के लिए फिर शिकायत करते फिरते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कितने लोग ऐसे हमारे पास आते हैं बेचारे। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबको अमन और अमान नसीब फरमाए, अल्लाह सबको आफियत और खैर का मामला सबके साथ फरमाए। कैसे कैसे हालात लेकर आते हैं, कैसे कैसे हालात बेचारे, कैसे कैसे हालात। एक आदमी 2-3 दिवस पर आया, बेचारा मदद के लिए आया, कहने लगा कि मुफ्ती साहब पहले ये बीमारी हुई, फिर ये बड़ी बीमारी गिना रहा था। 6 लाख में उसका ऑपरेशन हुआ, दूसरी बीमारी हुई। 2.5 लाख में दूसरा ऑपरेशन हुआ। बस इसी ऑपरेशन में था गिर गई मेरी बीवी, उसकी टांग टूट गई, उसकी टांग टूट गई। शुगर की मरीज थी, वो टांग दुरुस्त करते 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 सब कुछ मेरा खत्म। अभी एक दूसरा ऑपरेशन कराना मजबूर। ये ऐसे हालात है। तो अल्लाह से आफियत मांगे, खैर मांगे। ये खैर मांगने के औकात अल्लाह ताला ने अता फरमाए। फिर ये औकात गए तो अपने नहीं आएंगे। जाकर देख लो हॉस्पिटलों में, जाकर देख लो कैसे कैसे बेचारे लोग परेशान हाल है, वो चल नहीं सकते, मस्जिद में आ नहीं सकते। अब पछता रहे हैं कि काश हमारी जवानी थी, हमारे पास ताकत थी, हमारे पास सब कुछ था, मस्जिद में जा सकते थे। लेकिन हम अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें हमें सहूलत दी थी, हम जाते नहीं थे। आज परेशान, आज बेहाल है, आज जा नहीं सकते, रो रहे हैं। अभी जुमा की अज़ान इन्होंने सुनी होगी,
घर में सोए सोए रो रहे होंगे और हॉस्पिटलों में सोए सोए रो रहे होंगे कि काश हमारे पास भी ताकत होती तो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए। ये अल्लाह ताला ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, कदर करो इसकी, इधर उधर न दो, जल्दी आ जाओ मस्जिद में आकर अल्लाह से दुआ मांगो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र अस्कार करो। ये हमारे पास औकात है, ताकत है। देखो ये जुमा का वक्त है, अब वक्त हो गया है, थोड़ी देर में खुतबा खड़ा होगा, देखो कितने लोग हैं। अभी जैसे ये खुतबा खड़ा होगा दूर तक मस्जिद भर जाएगी। कहाँ ये कहाँ? मस्जिद से मोहब्बत रखो। ये हमारे पास एक तालाब है, मछली जैसे तालाब के बगैर बेचैन होती है, इसी तरह मस्जिद होनी चाहिए कि मस्जिद हमारे लिए तालाब है। मस्जिद के बगैर हमारे अंदर बेचैनी पैदा होनी चाहिए कि कब मैं मस्जिद में पहुंचूं। जुमा के रोज जाओ, जाकर देखो दूसरे शहरों में, अपनी तमाम मस्जिदें देख लें, तमाम मस्जिदें। अब रिसर्च करें, अभी देखें मस्जिदें, हम तो देखते रहते हैं और पूछते रहते हैं, तहकीकात करते रहते हैं। सारी मस्जिदें खाली होंगी, 200 होगी, 300 होगी, 400 होगी, और दूसरी किनारों पर जो मस्जिदें जरा दूरी पर, वहां तो कोई होता ही नहीं। कहां जाते हैं सारे लोग? कहां जाते हैं? अल्लाह को नाराज करके कहां जा रहे हैं? अल्लाह की नाराजगी का और क्या होगा? क्या दूसरे इलाकों में जाकर देखे, 12 बजे से मस्जिद बनना शुरू हो जाती है, 4-4 मंजिला है, 4-4 मंजिला मस्जिदें हैं, भर जाती है। फिर अजान होने को जगह नहीं मिलती, दूसरी मस्जिदों में जाओ, दूर दराज जाओ, ऐसे हालात। लेकिन हमारी मस्जिदों में ये नहीं है। जुमा का रोज है, जुमा की नमाज पढ़नी है, अल्लाह को मनाना है। ये बेहतरीन नमाज अल्लाह अता की है। दोपहर की नमाज में जोर से किरात नहीं है, लेकिन जुमा की नमाज में किरात रखी है, खुतबा रखा है। ये सारी हमारे लिए बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला कहीं इस इबादत पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो हमारे अंदर कमी कोताहियों को दूर करके हमें अच्छी बातों पर अमल करने